Welcome class. I am Durgesh Kumar Pandey. Today class I am going to explain a chapter in the book. The name of the book is Contemporary World Politics and their last chapter Globalization. This is your topic globalization class. Class, we already discussed what is the meaning of globalization. Globalization means movements of four things. When the peoples are moving, ideas are moving, goods are moving, and services are moving from one corner of the world to another corner of the world. This is known as globalization. And the meaning is globalization is not only on the basis of economically, where all the market of the world are interconnected and the trade barriers are reduced. It is not the only meaning of the cultural influence कि most of the Indians या Asians are influenced by the Western cultures. What they eat, what they wear are changed. So this is not only the cultural basis. They have different aspects. There are many things are come under the globalization class, and we already know what are the causes of globalization. There is some historical reason, na? कि previously there was a trade between Asia and Europe, and when the Ottoman Empire was captured the land of Central Asia, then the Europeans were come to South Asia by new sea routes, and due to this search of this new routes, many new continents like North America, South America were invented, and now the worlds are interconnected due to trade class. So there is some historical reason of globalization. Travelers are moving one corner to another corners, and in our India, the Turks and Mughals were come from northwest, and so there is some historical basis, and technological advance is also the responsible of globalization class. Due to innovation of printing machine, the nationalism was arises in the Europe, and now peoples become more literate. New technology like telephone, telegram, mobiles, internets, where these are the region of the globalization. And when an incident occur in any part of the world, it will spread within few seconds in all over the world class. So these are the some region of globalization class, and naturally there is if an event is happening in a particular area, is also it affect the another area. So by nature, it is due to nature, the worlds are interconnected like a bird flu. This if any birds is infected by any infections, so it will spread by naturally. But our nature is like tsunami. Tsunamis never discriminated in any country and equally hit all the areas. So by nature, nature is also creating no discrimination among the national boundaries. So there are many things in the globalization class.
Class, now we will going to discuss about the consequences of globalization. Globalization की क्या effect है? Class, there is some political consequences, some economical consequences, and some cultural consequences. Class, तो ग्लोबलाइजेशन के जो कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज है वो क्या क्या है क्लास? देखो, जो कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज है लाइक मैकडोनाल्ड टेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, यानी जो कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस ग्लोबलाइजेशन का ये है क्लास की वी फॉलो द अमेरिकन जीन्स, वी वियर अमेरिकन जीन्स, वी ईट द थिंग्स विच आर eating West and American countries like pizza, burger. These are items are basically Americans and West. So we like to eat this because they are related to America. So our eating, our thinking, our wearing has changed by the वेस्टर्न कंट्रीज़ बाय द अमेरिकन कंट्रीज़. अमेरिका का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर, हमारा ईटिंग हैबिट, हमारी वेयरिंग, कपड़ा पहनने के तरीके बदल रहे हैं. एंड वी आर आवर वैल्यूज़ आर आल्सो चेंज. वी नो वी आर अडॉप्टेड द कैपिटलिज्म ऑर्डर. वी फॉलो द अमेरिकन स्टाइल्स की लाइक McDonaldism of the world or follow the Americans lifestyle. Like if you are looking previously in the Cold War, you study ki one some Russians were purchased the blue jeans in a black market and they feel blue jeans is the symbol of liberty. And so class, one thing is the cultural homogenization. So class, what is the meaning of cultural homogenization? Means कि जो वेस्ट का कल्चर है दे आर बिकम वेरी पॉपुलर इन आवर कंट्री एंड वी आर अडॉप्टेड दिस एंड मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड अडॉप्टेड दिस. देखो, जो यूनिफॉर्म कल्चर की बात हो रही है, इट इज़ नॉट द मीन्स ऑफ ग्लोबल कल्चर. देखो, ग्लोबल कल्चर क्या होती है? ग्लोबल कल्चर इज़ द इम्पोजिशन ऑफ द वेस्टर्न कल्चर्स ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. देखो, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन क्लास द पीपल लॉस्ट देयर एज, old values and tradition. Due to globalization, people forget their culture, their behavior, which are very old in their traditions class. And the world began to look more likely the dominant power over the less powerful countries. जो powerful countries हैं उनके कल्चर को, उन बिहेवियर को अच्छा समझा जाता है और वो जनरली जो पुअर और जो बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर डोमिनेट करते हैं क्लास. इस लेड टू द श्रिंकिंग ऑफ द रिच कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ द एंटायर ग्लोब. इसका ये परिणाम होगा कि जो इंडिविजुअल का जो कल्चर है हर कंट्री का वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा. व्हेन द जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो उनका कल्चर पूरे वर्ल्ड पे डोमिनेट करेगा एंड जो वीक कंट्रीज़ हैं या उनके जो रिच हेरिटेज है, कल्चर है, वो धीरे धीरे जो है लैप्स होती चली जाएगी. लाइक इन आवर कंट्री इन इंडिया द चिल्ड्रंस आर फॉरगेट देयर ओल्ड ट्रेडिशंस लाइक हाउ दे विश देयर एल्डर्स, हाउ दे टच द जो पाँव छूते हैं वो दे फॉरगेट ट्रेडिशंस.
in our culture class. There is a cultural consequences like the culture effect of the globalization led to the fear that this process poses the threat to the culture of the world. मतलब ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो वेस्ट का कल्चर है वो हर जगह हावी हो जाएगा और जो दुनिया की जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में जो कल्चर्स है वो ख़त्म हो जाएगी, इस बात का डर है क्लास. And another thing is the cultural of the political and economical dominant society leave its imprint on less powerful society, and the world began to look more like the dominant power wishes is to be. ठीक है, जो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली जो डोमिनेंट सोसाइटी है उनकी जो कल्चर है वो जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा असर डाल रही है, और जो वीक कंट्री है वो उसी तरह से बिहेव करना चाहते हैं जैसे पावरफुल कंट्री. तो दोज हु मेक दिस आर्गूमेंट ऑफन ड्रा अटेंशन टू द मैकडोनल्डिज्म ऑफ द वर्ल्ड with the culture seeking to buy into the dominant American dream. यानी जो दुनिया की कल्चर है उन अमेरिका के रास्ते को अपना रही है, और इसको हम लोग बोलते हैं जो अमेरिका के ड्रीम है वो हमारे ऊपर हावी हो रही है. इसको वी कैन से मैकडोनल्डाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड क्लास. सो जो ग्लोबलाइजेशन का जो कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो मिस्टेक से हम लोग उसको केवल नेगेटिव वे में ही देखते हैं क्लास से, बट ये केवल नेगेटिव ही नहीं है क्लास. इट वुड बी अ मिस्टेक टू एज्यूम द कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर ओनली नेगेटिव. केवल नेगेटिव ऐसा सोचना गलत है. कल्चर आर नॉट स्टैटिक थिंग. देखो कल्चर एक स्टैटिक थिंग नहीं है, उसमें हमेशा बदलाव आता है. ऑल द कल्चर एक्सेप्ट आउटसाइड इन्फ्लुएंस ऑल द टाइम. देखो जितनी भी दुनिया की कल्चर है उनमें बदलाव आता है, वो भी नई चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, चाहे दुनिया की कोई भी कल्चर हो. सम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आर नेगेटिव but they reduce your choices because they reduce our choices. देखो कुछ कल्चरल कॉन्सिक्वेंस ग्लोबलाइजेशन के जो कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो नेगेटिव इसलिए हैं कि दे रिड्यूस आवर चॉइसेस, बट समटाइम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस सिंपली इमर्ज आवर चॉइसेस, इनलार्ज आवर चॉइसेस. लेकिन कभी कभी जो ग्लोबलाइजेशन के जो कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस हैं हमारे चॉइसेस को बढ़ा देते हैं. ठीक है, सम टाइम दे मॉडिफाई आवर कल्चर, हमारी कल्चर को मॉडिफाई करते हैं विदाउट ओवर वेल मीनिंग द ट्रेडिशन, और हमारी परंपरा को बिना हमारे ट्रेडिशंस को जो है नुकसान पहुंचाए वो हमारी चॉइसेस को बढ़ा देते हैं क्लास. लाइक द बर्गर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर द मसाल डोसा. मसाल डोसा का सब्स्टिट्यूट बर्गर नहीं है, एंड देयरफॉर डज नॉट पोज एनी रियल चैलेंज. इसलिए कोई चुनौती नहीं है क्लास. इट इज़ सिंपली एडेड ऑन टू आवर फूड चॉइसेस ना, बल्कि जो है बर्गर हमारे जो फूड चॉइसेस उसमें एक नई चीज़ का जुड़ना ही है क्लास. ब्लू जीन्स ऑन द अदर हैंड कैन गो वेल विद द हैंड स्पैन खादी कुर्ता. जैसे ब्लू जीन्स हमारे मार्केट में है क्लास, तो वी वियर ब्लू जीन्स विद द खादी कुर्ता. तो आज हमारे यहाँ खादी कुर्ता के साथ लोग ब्लू जीन्स पहन रहे हैं. तो दिस मेक अ न्यू कल्चर. इससे हमारे कल्चर में जो है चीज़ें ऐड ही हो रही हैं क्लास.
तो ये न्यू कॉम्बिनेशन आप निकल के आ रहा है खादी कुर्ता के साथ ब्लू जीन्स क्लास। खादी कुर्ता वर्क ओवर जीन्स इंटरेस्टिंगली, ठीक है। तो अगर आप खादी कुर्ता के साथ जीन्स पहनते हो तो ये बहुत ही मज़ेदार है क्लास। दिस क्लॉथिंग कॉम्बिनेशन हैज़ बीन एक्सपोर्टेड बैक to our country that give us blue jeans, so that is possible to see young American wearing a khadi kurta and jeans, and this new combination is return to America कि अमेरिकन्स भी वही स्टाइल्स को अडॉप्ट कर ले क्लास। तो वेल कल्चर homogenization is an aspect of the globalization. The same process also generate the precisely the opposite effect class. It's led to the each culture becoming more different and distinctive. तो ऐसा करने से हमारी कल्चर और ज़्यादा डिफरेंट और डिस्टिंक्टिव हो जाएगी। This phenomena is called कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन क्लास। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन मीन्स बाहर की चीज़, बाहर के जो तौर तरीके उसको ऐड हो जाने से हमारी कल्चर और डिफरेंट और जो है हो जाएगी। तो दिस इज़ कॉल्ड कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन। दिस इज़ नॉट टू डिनाई दैट देयर रिमेन डिफरेंसेस in power when culture interact, but instead more fundamentally to suggest that cultural exchange is rarely one-way class. देखो क्लास the economical consequences of globalization। तो economic globalization usually involve greater economic flow among the different countries of the world। मतलब जो गुड्स हैं कंट्रीज़ के बीच में अब ज़्यादा फ्लो कर रहे हैं, सर्विसेज मूव कर रही हैं क्लास, कैपिटल मूव कर रहे हैं। सम ऑफ दीज इज़ वॉलेंट्री, कुछ तो वॉलेंट्री हैं, एंड सम फोर्स बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड पावरफुल कंट्रीज़। कुछ तो लोग वॉलेंट्री लेवल पे कर रहे हैं, जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपनी एलपीजी को अडॉप्ट किया, जैसे इंडिया वाज अडॉप्ट द एलपीजी। जो चाइना ने भी कैपिटलिज्म ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया। तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो अपने इकोनॉमी को ओपन बना रहे हैं। रशिया ने भी जो है यूएसएसआर इज आल्सो अडॉप्टेड द कैपिटलिज्म ऑर्डर बाय शॉक थेरेपी। तो दुनिया के तमाम देश खुद से अपनी इकनॉमी को ओपन कर रहे हैं ताकि उनमें इन्वेस्टमेंट हो और उनका व्यापार बढ़े। बट कुछ पे जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन और पावरफुल कंट्रीज़ के कारण भी ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है क्लास, लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस पे द कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। अब जो ट्रेड बैरियर थे वो रिड्यूस कर दिए गए हैं, और अब जो है कहीं भी कोई कंट्री किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करे तो उसका वेलकम हो रहा है क्लास। एलपीजी को अडॉप्ट कर लिया है। जो सरकारें हैं उन्होंने अपनी पॉलिसी को लिबरल बना दिया, अपने लाइसेंसी सिस्टम को ख़त्म करके जो रूल्स हैं उसको रेगुलेट कर दिया है क्लास। एंड economical globalization has created an intense division of opinion of the world। देखो इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंसेस ने पूरी दुनिया में लोगों के जो है थॉट्स को भी चेंज किए, जैसे कि दोज हु आर कंसर्न अबाउट सोशल जस्टिस आर वरीड अबाउट द एक्सटेंट्स ऑफ द स्टेट विड्रॉल काजेज बाय प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। देखो जो सोशल जस्टिस वाले हैं उनका ये कहना है कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी वजह से जो वर्ल्ड की इकोनॉमी इंटरकनेक्ट है, और राज्य जो है कैपिटलिज्म ऑर्डर में राज्य जो है
कम से कम इंटरफेयर करता है। तो जो सोशल जस्टिस वाले चिंतित हैं कि अगर ऐसा होगा तो फिर जो गरीब लोग हैं, पुअर्स हैं, उनकी बेसिक नीड्स पहले राज्य इंश्योर करता था, तो फिर उनका क्या होगा। तो दे वर वरीड कि जो सोशल जस्टिस वाले हैं कि उन डाउन ट्रोडन और पुअर पीपल्स का क्या होगा जो बिलो पॉवर्टी लाइन के रहते हैं, नीचे रहते हैं क्लास। देखो, जो सोशल जस्टिस वाले हैं उनका ये कहना है कि जो एक ग्लोबलाइजेशन के जो इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके जो निगेटिव इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि उसका बेनिफिट ओनली गॉट द सम स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ द सोसाइटी, जो फैक्ट्री के मालिक हैं। लेकिन जो इस ग्लोबलाइजेशन के जो इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसका निगेटिव इफ़ेक्ट जो पुअर्स पे पड़ेगा, जो बिलो पॉवर्टी लाइन पे जी रहे हैं, वो चिंता की बात है। उनको न्याय कैसे मिलेगा अगर राज्य जो है इंटरफेरेंस का अपना काम छोड़ देगा, चीज़ों को रेगुलेट करने का काम छोड़ देगा, तो हु इज़ टेकिंग responsibility to ensure the social justice of below poverty line, जो उनको उनकी ज़रूरतें कैसे इंश्योर होंगी कि उनकी पूरी हो जाए। तो लाइक a term is using here कि सोशल सेफ्टी नेट्स, अगर राज्य अपने हाथ खींच लेगा तो जो सोशल सेफ्टी नेट्स हैं जो पुअर्स के लोग ख़त्म हो जाएगा, और जो राज्य जो कि ग्लोबलाइजेशन का जो नेगेटिव इफेक्ट है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए राज्य को इंश्योर करना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा क्लास। देखो, बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला है कि राज्य को अभी इंश्योर करना पड़ेगा कि जो पुअर्स हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनकी बेसिक नीड्स इंश्योर हो, हर हाल में पूरी हो। तो दे आर सेइंग द पीपल्स हु आर थिंकिंग अबाउट सोशल जस्टिस, और उनका ये कहना है कि ये व्यवस्था को बहुत लंबा, जो मार्केट इकोनॉमी की व्यवस्था बहुत लंबा चलेगा, तो जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा और उनकी इकोनॉमी रूइन हो जाएगी क्लास, और इसलिए इस व्यवस्था को ख़त्म कर देना चाहिए। स्पेशली जो वीकर कंट्रीज़ हैं, पुअर हैं, वहाँ पे इनका और बुरा असर इनके ऊपर पड़ेगा, बिकॉज अगर राज्य जो है इंटरफेयर करना छोड़ देगी तो क्लास, इसको हम लोग कैन से ग्लोबलाइजेशन एज अ रीकोलोनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड क्लास, यानी जो पुअर्स हैं उनके ऊपर फिर से जो कुछ पावरफुल सेक्शंस हैं, फिर से डोमिनेट न्यू कोलोनाइजेशंस स्टार्ट हो जाएगा क्लास। जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो इन पुअर कंट्रीज़ के ऊपर हावी हो जाएंगे क्लास। देखो, एडवोकेट्स ऑफ द इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन अर्ज दैट इट जनरेट ग्रेटर इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड वेल-बीइंग फॉर अ लार्ज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन वेयर देयर इज़ डीरेगुलेशन। देखो, इसको सपोर्ट करने वालों का मानना है कि इससे लोगों का ज़्यादा कल्याण होगा ना, इकोनॉमिकल ग्रोथ और वेलबींग ज़्यादा होगा, लार्ज सेक्शन में लोगों का होना चाहिए, होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर डीरेगुलेशन, नियमों कानून को कमज़ोर कर दिए जाए तो इससे समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट होगा। तो सपोर्टर्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन से दैट globalization provides a challenge that can be responded to intelligently without accepting it uncritically class. So class तो interdependence, integration of between
governments, integration between the governments, businesses, and ordinary peoples in the different part of the world as a result of globalization class.